तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन. अ लेटर टू गॉड. Read the following passage and answer the question that follow. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who was perform a good deed looked on from his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make us express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he leaked and then affixed to the envelope with the blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." Lencho. So, who came a bit earlier the following Sunday? Lencho. How much money reached Lencho? 70 pesos. तो यहाँ पर आंसर होगा 70 पेचोस, क्योंकि लिखा हुआ था उसमें लेटर में. हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? ही वॉज एंग्री, क्योंकि उसको मनी कम मिली है ना. वाई डिड लेंचो आस्क द पेपर एंड इंक? लेंचो आस्क फॉर पेपर एंड इंक so that he could compose his second letter to God. Who does Lencho thinks has taken the rest of the money? What is the irony in this situation? Lencho thinks that the post office employees have taken the rest of the money. The irony in his situation is that Lencho suspects those people who helped him in his problem and try to keep his faith alive in God. 6 क्वेश्चन है. फ्रॉम द अबव पैसेज फाइंड सिमिलर वर्ड और सेटिस्फैक्शन. कंटेंटमेंट, इसका सिमिलर अर्थ होता है सेटिस्फाई होना, सहमत होना, या हम किसी काम को कर करके जब हमें खुशी मिलती है तो हम क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कंटेंटमेंट होना. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 20 to 30 वर्ड्स में आपको आंसर देना है. वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? Lencho compared the raindrops with new coins because they were promising him a god harvest resulting in more prosperity. To whom did Lencho write the letter? Why did he write the letter? Lencho wrote a letter to God because requesting him to send 100 pesos so that he could sow his field again till the next crop. ताकि वो उगा सके अगली फसल को अपने खेत में, तो उसके लिए उसने गॉड से प्रे किया 100 पेसोस का. Why did the postmaster send money to Lencho? Why did he sign the letter God? गॉड का साइन क्यों किया उस पोस्टमैन? तो पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचो's faith in God alive. Moreover, the postmaster did not want to shake Lencho's faith in God, so he signed the letter God. It was a good play to convey a message that God had himself written the letter. तो जो पोस्टमास्टर ने ही लिखा था उसे लेटर गॉड के रूप में, गॉड का साइन करके. तो इसलिए लिखा था क्योंकि लेंचो को बहुत ज़्यादा बिलीव था गॉड पर कि वो जिंदा है, वो उसकी मदद करेंगे. तो पोस्टमास्टर ने उस पर दया करते हुए वो लेटर लिखा, उसको मनी भी सेंड की थी और वो उसका आंसर भी देता था ताकि उसका जो फेथ है गॉड के प्रति वो बना रहे. तो यहाँ पे एक काइंड नेचर दिखाता है पोस्टमास्टर का कि वो कितना काइंड नेचर का है कि उसने उस बच्चे की हेल्प करी, उस पर्सन की हेल्प करी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स में आपको आंसर देना है. आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? Was he right when he called the post office employees a bunch of crooks? I don't think
there can be any such people in real world. Lencho is literate, and yet he doesn't know how his letter will reach God without any address. He probably probably would he be naive. He could not believe that God had sent him any less money, so he doubted the post office employees. उसको डाउट हुआ कि पोस्ट ऑफिस की किसी पर्सन ने ऐसा किया होगा कि उसकी मनी चुरा ली होगी, बट ही वॉज नॉट राइट टू कॉल देम अ बंच ऑफ क्रूक्स. उसे पर राइट नहीं है किसी को कुछ बोलने का, जैसे उसने कहा पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स, तो ये उसको राइट नहीं है क्योंकि उसको ना तो एड्रेस पता है, उसने सिर्फ लेटर लिख दिया है. तो इस टाइप के अभी लोग होना मुश्किल है. अगर होते भी होंगे तो शायद उन्हें फिर अलग ही कहा जाता है. तो ठीक है, तो इस तरह से नहीं कह कर कि उसे उल्टा मानना चाहिए था कि गॉड है नहीं है, तब भी है ना मुझे गॉड ने 70 रुपीज़ दिए. ठीक है, तो ये भी बहुत होता है. ठीक है, तो बट ही डजंट नो कि गॉड होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उसे भी नहीं पता था. तो वो यहाँ पर सही भी और गलत भी है. ठीक है, दोनों ही तरह से है. फिर देखेंगे वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन. यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. जिस तरह से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अहिंसावादी तरीके से देश की स्वतंत्र कराने में हेल्प करी थी, उसी तरह से एक तरह से साउथ अफ्रीका के ये राष्ट्रपिता हुए हैं नेल्सन मंडेला, जिन्होंने वहाँ की फ्रीडम के लिए लड़ा था. अब वो किस तरह से लड़ा था वो मैं आपको बता देती हूँ. नेल्सन मंडेला, जिनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 और देहांत हुआ था 5 दिसंबर 2013 को, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे ये, जो कि सफ़ेद नहीं थे. वहाँ पर क्या होता था कि सफ़ेद कालों का भेद होता था, रंग भेद होता था वहाँ पर, तो उसी के लिए इन्होंने फ्रीडम लड़ी थी. और ये पहले वहाँ पे राष्ट्रपति बने थे अश्वेत, जो कि सफ़ेद नहीं थे. राष्ट्रपति बनने से पूर्व दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सहस्त्र गुट उमखोतों में सीजीवी के अध्यक्ष रहे. रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रोबिन द्वीप के कारागार में बिताए. उन्होंने अपने जीवन के 27 साल जेल में बिताए थे, जहां उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा था. 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नई दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया. वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए थे. संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया. तो यहाँ पर इन्हीं से रिलेट एक पैराग्राफ दे रखा है, तो चलिए रीड करते हैं पैराग्राफ को. 10th मई dawned ब्राइट एंड क्लियर. 10 मई की सुबह एक उज्जवल और स्पष्ट यानी क्लियर सुबह थी. For the past few days, I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. पिछले कुछ दिनों से मैं गणराज्य व्यक्तियों और विश्व नेताओं से घिरा था, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान व्यक्त करने आ रहे थे. तो यहाँ पर जीवनी दे रखी है उनसे रिलेट, तो यहाँ पर वो आत्मकथा के रूप में बता रहे हैं जिससे हम रीड कर रहे हैं. ठीक है. द इनऑगरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोल. उद्घाटन दक्षिण अफ्रीकी धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा था, यानी सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होने वाले थे. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया. समारोह प्रीटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के एम्फीथिएटर में हुआ. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different color and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. दशकों से यह श्वेत वर्चस्व का केंद्र रहा था और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और देशों के इंद्रधनुषी जमावट का स्थल था. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jinani. उस सुंदर शरद ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president.
पोडियम पर श्री डी क्लार्क ने पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फिर उसके बाद देन थाबो मेबकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और थाबो मेबकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने तथा गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की शपथ ली। तो यहाँ पर ये उनका एक लेख दे रखा है जिसे आपने देखा अभी, तो उनसे रिलेट ही यहाँ पर ये लेख दे रखा है। तो अब इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। विच इनऑग्रेशन सेरेमनी इज बीइंग रेफर्ड टू इन द अबव पैसेज। उपयुक्त गद्यांश में किस उद्घाटन समारोह का उल्लेख किया जा रहा है? इनॉग्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। वहाँ पर जो श्वेत और अश्वेत की जो भेदभाव होता था, अब तक का ये पहला राष्ट्रपति बने जो श्वेत नहीं थे, तो उनके ही सम्मान जो उनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उसी के बारे में ये पैसेज दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, द इनऑग्रेशन सेरेमनीज टुक प्लेस इन। कहाँ पर हो रहा था ये? प्रिटोरिया। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, प्रिटोरिया। हु वॉज स्वर्न इन एज द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली थी? आंसर हो जाएगा डी, मिस्टर डी क्लार्क ने। व्हाट डिड द न्यू प्रेसिडेंट नेल्सन मंडाला प्लेस। नेल्सन मंडाला ने क्या प्रतिज्ञा की? नेल्सन मंडाला प्लेस टू ओबे एंड uphold the constitution and to devote himself to the well-being of the republic and its people. उन्होंने संविधान का पालन करने, उसे बनाए रखने और गणतंत्र और उसके लोगों के कल्याण के लिए अपना घर समर्पित करने की प्रतिज्ञा ली। फिफ्थ क्वेश्चन है, why did world leaders attend the inauguration ceremony? The world leader had come there to pay their रेस्पेक्ट टू द न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट। उनको रेस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पर सभी इकट्ठे हुए थे वर्ल्ड लीडर। विच वर्ड इज द इन द पैसेज मीन्स अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अ डिकेड इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स शो कर रहा है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को। आंसर करना है 20 to 30 वर्ड्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। Mandela mentioned the twin obligation. The first is to his family, parent, wife, and children. The second obligation is to his peoples, his community, and his country. जो उनकी कम्युनिटी से आते हैं और उनकी कंट्री से रिलेट करते हैं, उन पीपल को समर्पित किया। सेकेंड है क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब द इनऑग्रेशन सेरेमनी एट द यूनियन बिल्डिंग्स। द इनऑग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द amphitheater formed by Union Building in Pretoria because it was the grand occasion of swearing in the Nelson Mandela as the President of South Africa. ग्रांड जो शपथ समारोह हो रहा था, इसमें बहुत सारे वर्ल्ड लीडर आ रहे थे, इसके लिए यहाँ पर सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के थ्रू। हाउ डिड द मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। In the beginning of his life, Mandela was not aware about freedom. Later, Mandela found that his freedom had been taken away from him. As a student, he wanted to freedom only for himself, but slowly his own freedom became the greater hunger for the freedom of his people. This changed him completely. तो ये जो पहले तो वो खुद के लिए लड़ रहे थे, बट उन्होंने धीरे धीरे स्लोली जब देखा अपने आसपास उनकी नस्ल से जो थे, तो उन्होंने देखा तो वो सभी के लिए अपने जैसे लोग थे उनके लिए लड़ना स्टार्ट किया उन्होंने। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आपको ब्रीफ में 80 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन फोर्थ है, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। हाउ डज मंडेला इल्यूस्ट्रेट दिस, डिस्क्राइब।
Yes, it is true that the depths of oppression creates heights of character. Nelson Mandela illustrated his argument by giving examples of some people of extraordinary courage and wisdom. This period of struggle to end apartheid produced people like Oliver Thambers, Walter Cecils, Bram Pichels, and so on in the soil of South Africa. Nelson Mandela himself was a product of the same conducting the hunger for freedom changed his life. तो